Alright, welcome dear students. Now in this lecture we are going to talk about the second chapter, that is work and energy. I know the one topic is there, conservation of the momentum from the first chapter, and obviously the numerical part that we will be seeing in the classroom lecture. So we are moving to the second chapter, work and energy. Now, before that there is a little definition of work which is not mentioned in the textbook, but let me tell you that definition. What do you mean by work, people? So work is the measure of energy transfer from applying body to experiencing body while applying the force. Means what? जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, when I apply any force on any object, it means what? I am actually transferring my energy, the some part of my energy to the other object, So guys, work आपको ये बताएगा कि आपका एनर्जी ट्रांसफर जो है वो कौन से फॉर्म में से कौन से फॉर्म में जा रहा है, एंड प्लस आपका एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, मोर द एनर्जी, see if I apply the more force on any object, it means what? The more energy I am using. तो गाइस जो मेरी एनर्जी, आप सिंपल बात समझो कि गाइस यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गाइस हम लोग को ये बताता है दैट एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे बॉडी के अंदर का एनर्जी कम होगा, राइट? लेकिन मेरे बॉडी का एनर्जी जब कम होगा, इसका मतलब वही कम हुआ एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है. Alright, so guys, work basically deals with the transfer of energy from the applying body, that is the body who is applying the force, and to the experiencing body which is experiencing the force by the applying body. Alright, now यहाँ पे मैंने टोटल 4 केसेस लिए हैं. एक एक केस को समझते हैं. देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहला था रेस्ट पे, तो हम लोग फोर्स लगाए एंड इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट तक लेके गए. मींस व्हाट? एक सर्टन डिस्टेंस तक, एक सर्टन डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने उस ऑब्जेक्ट का करवाया, और एक सर्टन हाइट पे लेके जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को फिर से रेस्ट स्टेट में ही रख के आ गए. मींस व्हाट? यहाँ पे वी आर अप्लाइंग द फोर्स, बट वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट स्टेट to again in the rest state, but now this time the object is placed at some height. तो guys यहाँ पे आप देखिए हम लोग को फोर्स तो लगाना पड़ेगा. So what we are doing basically is we are applying some force on this object, and due to our force इस ऑब्जेक्ट का इसकी मूल स्थिति से, मेन पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है till certain another position, right? तो हम लोग ने फोर्स लगाया और हमने उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करवाया, लेकिन वो शुरुआत में भी रेस्ट में था और उसका आखिरी अंतिम स्टेट भी रेस्ट ही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे और उसके वजह से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है. Means what we are doing actually, we are transferring our energy, some part of our energy we are transferring to the block, and when the block will go at some height, the block will store that energy which we have transferred. Alright, सेकेंड केस देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हम लोग ने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट रेस्ट में से चला गया मोशन स्टेट में. तो यहाँ पे भी सेम, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, मींस वी आर transferring our energy to the object, and with that energy the object is moving. Now the object is moving. यहाँ पे क्या था? पहले भी रेस्ट, बाद में भी रेस्ट. यहाँ पे क्या था? पहले रेस्ट एंड बाद में मतलब फोर्स लगाने के बाद में मोशन. And can you see this S over here? So this S is the displacement of the object from its original position. In third case, so here also the transfer of energy is there. जितना एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे, we can say कि उतना वर्क भी ज्यादा हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर. यहाँ पे भी सेम. Now here the object is already in motion and coming towards ourselves.
So what we are doing, we are applying the force in opposite direction and we are trying to stop the object. तो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आने वाला है, मोशन से लेके रेस्ट में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को फोर्स लगाना पड़ रहा है। मीन्स व्हाट, फोर्स लगा रहे हैं मीन्स व्हाट, आप लोग अपना एनर्जी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। मीन्स व्हाट, हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो गाइस वर्क का मतलब क्या होता है, द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एबी दैट इज अप्लाइंग बॉडी टू द ईबी दैट इज एक्सपीरियंसिंग बॉडी व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, ये वॉल है एंड यहाँ पे मैं फोर्स लगाते जा रहा हूं लेकिन वॉल टच से मस ना हुआ, मतलब वॉल में डिस्प्लेसमेंट दिखा नहीं, वॉल अपनी जगह से हिला, यहाँ पे वो धक्का दिया, वॉल के बाजू वाले के घर में गया क्या, नहीं गया, मतलब वॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। मींस आई एम अप्लाइंग द फोर्स राइट बट आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो गाइस W देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय AB ऑन EB। ऑब्वियसली वर्क कौन करेगा, जो फोर्स लगाएगा, एंड वर्क किस पे होगा, जिस पे फोर्स लगाया जाएगा। एंड जो मैंने बोला एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर किससे किस में होगा, अप्लाइंग बॉडी से एक्सपीरियंसिंग बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। याद रखिए दो मेन एनर्जीज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में डिटेल में आगे देखने वाले हैं हम लोग। सो गाइस देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एबी ऑन ईबी। सो जो वर्क मैंने ऑब्जेक्ट पे किया, जैसे यहाँ पे रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट तो ऊपर लेके गए और ऊपर भी रेस्ट में ही रखा ना, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है मींस व्हाट, इफ ईबी रिमेन्स एट रेस्ट at some height because of force, then we will say that this EB has potential energy। क्या बोलेंगे, potential energy। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर फोर्स लगाने के बाद रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह रहा है at certain height, तो we can say the work which I did on object, that work is storing in the object in the form of potential energy, in the form of potential energy। समझ लो, अब रेस्ट वाले को मैं रेस्ट पे ही लेके गया बट एट सर्टेन हाइट, तो जो मैंने वर्क किया वो वर्क उसमें स्टोर हो गया, ट्रांसफर हो गया एनर्जी मेरा, एंड वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात देखिए, क्या अगर EB is going in मोशन स्टेट बिकॉज ऑफ द फोर्स, जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो पहले वो रेस्ट में था, बाद में वो मोशन में गया ना, तो मोशन में गया मतलब उसमें कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, द एनर्जी दैट आई ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई सेल्फ टू दैट object, right? It means we can say that whatever work I have done on that object, that work is now storing in the object in the form of kinetic energy because the object is moving and there the object was at rest, that's why the potential energy, ठीक है। तो कन्वर्जन समझिए, वर्क तो दोनों जगह पे हो रहा है, रेस्ट वाले को रेस्ट में लेके जाने में भी और रेस्ट वाले को मोशन में भेजने में भी, वर्क दोनों जगह पे हो रहा है, लेकिन एक जगह पे वर्क का ट्रांसफर पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है और एक जगह पे वर्क का ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। दैट इज द थिंग पीपल। तो तोड़ ताड़ के, मरोड़ मरोड़ के और घुमा फिरा के वर्क का मतलब क्या है, तो वर्क इज द नथिंग बट मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा हम लोग अपना एनर्जी सामने वाले में सौंपेंगे और उतना ही ज्यादा वर्क हम लोग सामने वाले में करेंगे, और हम लोग ने जितना वर्क किया है दैट वर्क विल स्टोर इन द सामने वाला ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ PE और इन द फॉर्म ऑफ KE डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट रेस्ट है तो द वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ PE, फाइनल स्टेट अगर मोशन में है तो वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ KE। ऑलराइट गाइस, so guys in the mathematical form the work can be given as the product of force and displacement। so guys work on EB, like I told you, work कौन करेगा, AB। किस पे करेगा, EB पे। so work done on AB is equals to force applied by AB, work done on EB is equals to force applied by AB
into displacement of EB, displacement of EB। तो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे हटके जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मूल स्थिति से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जबकि ये नेगेटिव वर्क का केस है, और एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर वर्क का फॉर्मूला। नाउ हियर यू कैन से in the normal case the force and the displacement, the direction in which we are applying the force and the displacement in which the object is displaced, both are same, ठीक है। But when if both F and S का direction will not be same, then what, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे एक हैंड कार्ट है, हाथ का गाड़ी है, हाथ गाड़ी होता है, मैंने धक्का मारा तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन और हाथ गाड़ी के आगे जाने का डायरेक्शन, मतलब हाथ गाड़ी के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन कैसे है, सेम है, राइट। बट व्हेन दे आर नॉट सेम, यू कैन सी यहाँ पे एक बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, तो वो इसके पास एक खिलौना है और वो उसको ये नीली वाली रस्सी है उससे वो खींच रहा है। सो गाइस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी खिलौना ऐसे खींचेगा तो खिलौना क्या ऐसे ऊपर ऊपर हवा में उड़ के आएगा क्या, खिलौना तो जमीन पे ही आएगा ना, नीचे, राइट। सो गाइस यू कैन सी द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द ईवी बोथ आर इंक्लाइन, मतलब उनके बीच में मार्क कर देना एंगल डाल पड़ेगा, मींस और यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक सर्टेन एंगल है, दोनों का दिशा सेम है क्या, नहीं। तो उसका एनालिसिस करने के लिए गाइस ये छोटा सा कंसेप्ट है 11th साइंस का, तो आप 10 के बाद 11th साइंस में जाओगे तो वहां पे आपका ये सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, जब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बट फोर्स इज नॉट इन परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो व्हाट वी डू, सो here the force is inclined, so what we do, we divide the inclined force into two components, one is the horizontal component and one is the vertical component। so guys ये आगे का लॉजिक है तो मैं अभी से बता के रख रहा हूं आपको। तो जैसे ये एंगल थीटा है, so this f cos theta means this line and this line is parallel, so these are nothing but the corresponding angle, so this theta is equal to this angle, that is nothing but theta। and guys always remember in this case the horizontal component will be f का cos component, that is f cos theta, and vertical case में f का sin component, that is f sin theta। alright, so what we have done in the resolution of vector, we divided the inclined vector into two components, one is the horizontal component and one is the vertical component। now at the time of calculation what we will do, we will assume the horizontal component of force, we will assume the horizontal component of force because that is in the direction of displacement, and that's why the formula will come like W is equals to f cos theta into s, and then cos theta will send over here, so W is equals to fs cos theta। now there are three possible values can be there of theta, what is that, 0, 90 and 180। so if I put cos 0, so cos 0 is 1, cos 90 degree is 0 and cos 180 degree is minus 1। so guys these values you have to keep remember in your mind। now we will see the types of work, that is positive work, negative work and zero work। simple things are there on the basis of the angle, what is the angle between the force and displacement, there are three types of work, that is positive, negative and zero। let's see how। you can see very first case, you can easily say that the okay, so here you can see the force and displacement दोनों का direction same है, means we can say they are parallel to each other, so the angle between them will be 0 degree and we will put into this formula, we will get cos 0 is 1, so we will get W is equals to fs। so you can see this is the maximum work possible, this is the maximum work possible and this is called as a positive work, ठीक है, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिए cos 0 का वैल्यू आया 1, तो यहाँ पे जो भी वर्क रहेगा इट इज योर मैक्सिमम वर्क, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव वर्क, ठीक है। इन सेकंड केस यू कैन सी थोड़ा सा ट्रिकी केस है जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है।
देखिए ऑब्जेक्ट मोशन में है और आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, इस दिशा में फोर्स लगा दिया, बट व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप एट दैट पॉइंट वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा आगे खींच के लेके आता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, इट इज ऑलरेडी इन मोशन, सो द ऑब्जेक्ट हैज द काइनेटिक एनर्जी, so with that all kinetic energy it will not stop where you are applying the force, but it will push you a little ahead, it will push you little ahead, so this is the displacement of object, right? And you can say this is the direction of force, so you can say that the displacement, the direction of displacement and the direction of force are both are opposite। so यहाँ पे देखिए फोर्स ऐसे जा रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, तो एक्चुअली देखेंगे तो एक लाइन बन गया ना। सो लाइन में क्या होता है, इफ दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज योर 180 डिग्री, राइट? सो थीटा विल बी 180 डिग्री and when we will put cos 180 we will get -1, we will get W is equals to minus Fs, so that work is called as a minimum work, right? Or we can also call it as negative work when the direction of force and the direction of displacement are opposite to it. Alright, now in the next case guys, यहाँ पे भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए ये छोटा सा टॉय है, समझ लीजिए छोटा सा टॉय है, एंड यू सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट पीपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है, व्हाट इज दिस एस, डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, समझ रहे हो? तो इसके लिए मैंने ये एरो ऐसा दिखाया है, जबकि मैं फोर्स तो ऐसे लगा रहा हूं, इट मींस व्हाट, दैट द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, राइट? सो इन दैट केस आप ही बताओ, अगर मैं टॉय को ऊपर खींचूंगा तो टॉय भी ऊपर ही आएगा, आगे जाएगा क्या? सो इन दैट डिजायर्ड डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, राइट? सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट द angle between the applied force and the desired direction of the displacement is 90 degree, so cos 90 is 0, W will be 0. So in this case, in the direction, in the horizontal direction, the work will be 0, the work will be 0. But अगर हम लोग इसको vertical direction में assume करेंगे तो आपका वर्क अगेन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी ऊपर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर रहेगा, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, लेकिन वर्टिकल वाला केस रहेगा, तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट वी वांट द डिस्प्लेसमेंट शुड टेक प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट दैट विल नॉट हैपन इन दिस केस because since the angle between them is 90 degree, the work done will be 0. Alright, so guys, इसके बाद में on next page there is a conversion factor of work, एक फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हम लोग ने इसके पहले के लेक्चर्स में भी देखे हैं। What do you mean by conversion factor, people? When we talk about the units of the physical quantity, so unit can be expressed in two systems, MKS and CGS. Okay, but if depending upon the requirement, we have to convert the quantity from MKS to CGS or vice versa. So what we do, we need a number to which we will multiply or divide. You know people, I have already explained this stuff in the previous video. To go from MKS to CGS, we multiply the conversion factor to the quantity, and to go from CGS to MKS, we divide by conversion factor. Alright, so conversion factor plays very important role in the conversion from the MKS to the CGS. So people see over here, यहाँ पे पहले हम लोग MKS में बात करेंगे, W is equals to Fs, so W का MKS में यूनिट इज 1 जूल, यहाँ का न्यूटन, यहाँ का मीटर। So guys, 1 जूल वर्क का एक डेफिनेशन भी है, what is that? मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन इतना फोर्स लगाया जाए, कितना? 1 न्यूटन इतना फोर्स लगाया जाए, एंड बिकॉज ऑफ 1 न्यूटन फोर्स अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर मिला, मतलब यहाँ पे एक चेयर है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया 1 न्यूटन और उसको मैंने डिस्प्लेस कराया बाय 1 मीटर, सो वी कैन से दैट उस चेयर पे मैंने कितना वर्क किया? 1 जूल। कितना वर्क किया? 1 जूल। सो गाइस, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन to get the displacement of the 1 meter. Alright, that's so easy, people. Now what we will do, we know the
conversion factor for the force and the distance or displacement. So 1 Newton can be converted into 1 dyne by multiplying with 10 raised to 5. 1 dyne can be converted into 1 Newton by dividing with 10 raised to 5. So 1 meter to 1 centimeter, you know, multiplying with 10 raised to 2 means 100, right? And then divide by 10 raised to 2. Okay. So what you will do? So here guys, जैसे वो MKS में बयां किया था वैसे हम लोग CGS में बयां करेंगे. That is 1 erg is equals to 1 dyne into 1 centimeter. So 1 erg work means what? When I will apply the 1 dyne of force to get the displacement of 1 centimeter. So we can say that मैंने उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया? 1 erg. 1 erg. ठीक है? Quite simple people, we will again write this expression 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. Now guys, 1 Newton can be written as 1 into 10 raised to 5 dyne. So we converted the Newton into dyne. Then 1 meter is equals to 1 into 10 raised to 2 centimeter, right? Then guys देखिए 1 into dyne. So 1 dyne को बाजू में लिए, 1 centimeter को बाजू में लिए, 10 raised to 5, 10 raised to 2 को साथ में लिए. Rules of indices people, bases are same, multiplication is there, powers will get add. So 10 raised to 5 plus 2, 10 raised to 7 we get. And guys, 1 dyne into 1 centimeter means what? Actually your 1 erg. That's a definition of 1 erg. So यहाँ पे 1 erg आएगा. So again we will multiply this stuff. We will get 1 joule is equals to 10 raised to 7 erg. Means what? Means what? For the work, the conversion factor is 10 raised to 7. Means if you want to go from SI nothing but MKS. ठीक है? If you want to go from joule to erg, you will multiply by 7. If you want to go from erg to joule, you will divide the quantity by 7. Yeah, so that's the conversion factor for the work. So guys, यहाँ पे अभी हम लोग basic समझे हैं कि work का मतलब क्या है. तो basically by doing work, what we do, we apply the force, we transfer the energy. Right? जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एंड उतना ज्यादा वर्क उस ऑब्जेक्ट पे हो जाएगा. भैया फोर्स लगा दिया, अगर रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह रहा है इसका मतलब वी आर ट्रांसफरिंग अवर वर्क इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. अगर रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है सो वी आर ट्रांसफरिंग अवर वर्क, that whatever work we have done on that object, that work will transfer in the form of kinetic energy. Alright, that's about this lecture. In the next lecture we will be talking about the potential energy, the derivation of potential energy and the kinetic energy. It's quite easy part over there. And in the last there is one derivation of the conservation of energy. Okay, thank you so much people.